सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द मार्च अप्रैल में जो है वो म्यूनसिपल कमेटी और पंचायतों के इलेक्शन जम्मू कश्मीर सरकार करवाने वाली है विद इन 6 महीनों के अंदर। मैं कहता हूँ जो 10 दिन बाद कराने दो दिन बाद करवा ले, हमें क्या फर्क पड़ता है। क्या देखते हैं कि एमएलए के चुनाव नहीं हुए, विधानसभा के चुनाव नहीं, लेकिन म्यूनसिपैलिटी और पंचायतों की बहुत जल्दी है सरकार को। वो इसलिए जल्दी है, वो देखते हैं कि नीचे है कुछ, जमीन खिसक तो नहीं गई है। अगर जमीन नहीं खिसकी है तो फिर वो एमएलए क्या कराएंगे, अगर खिसकी गई होगी तो वो होगा ही नहीं कभी खिसकी। थैंक यू। प्राइवेट च कोई रास्ता साढ़ा बंद करने कल कितने जाना नहीं ये इतना पूरा प्राइवेट और मैं कोई जी का प्राइवेट हाउस नहीं मुंड लाइट अगर दुनिया तुझे सरकार है वो तो पता लगे दो कनाल छोड़ा ये दो गुना हो ये दुकान ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਲੱਗੂਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਝੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਝੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ 186 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਇਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਟ ਵਗੈਰਾ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਾਲਕੀਆਂ ਬੁਲਵਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਵਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਕਰੀਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਏ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਰੰਗਵਾ ਉਹ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਚਲਾ ਜੂਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਟਰਾਈ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਪਿਆ। ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਾਹਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੋਡ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ ਜਦ ਬਣੇਗਾ ਮਗਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਆ ਲਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਆਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਟਰ ਸ਼ੈਂਟਰ ਪੁੱਟਰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਓ। ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਲਓ। नहीं वो भैया डबल साइड पे कोई नहीं और थोड़ी 4 फुट इसी पूरा कर लेना ना। सारी 4 फुट जगह सारी समझ मेरी गल सुनो ना, ਨਹੀਂ 4 नहीं है, कोई 6 7 7 8 फुट जगह कर भाई 4 फुट ही पूरा ये एक ही चीज है। फिर उधर ले हुई है ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲਾ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਫਸੀ ਜਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲੈਂਟਰ ਤੋੜੀਏ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੀਏ ਲੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਹ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਚਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ कोई खबर है ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਸਰ ਆਡੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਲਾਓ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ इसी पूरा ये बड़ा शटर लाइए फर्स्ट क्लास करिए अंदर हां बांधी पे है ऑफिस होता सब ठीक है बिल्कुल ये डाला हुआ है आप तो पीछे
किसी किस्म ब्लॉक करके ਇਹਦੇ ਪਰ ਛੜੀ ਇੱਕੋ ਤਾਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕੋਠੇ ਵੱਲ ਲਵਾਓ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾਓ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਏਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਨਾਲਾ ਸਾਫ ਸੂਫ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਦਿਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਹੋ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਫੈਲੇਗਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕਿੱਡੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਵੇਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਇਹ ਵੇਸਟ ਹੈ ਨਾਲਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਠੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਾਲਾ ਛੱਡੀਏ ਕਿਨਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰੀਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ठीक है ये करो अब गल करो ये बात की चीज़ है वार्ड 10 का क्या कुछ देखा है और क्या कुछ नया बनाने की योजना जो है हमारे पास पहले शॉपिंग कम्प्लेक्स के पैसे आए थे लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो पुराने दुकानदार हैं बेचारे उनका कोई नुकसान हो नहीं तो हमारा शॉपिंग कम्प्लेक्स बीच में बन रहा सेंटर में लेकिन ये जो दुकानदार हैं सारे के सारे बेचारे उसी दुकानों में बैठे हुए हैं बड़ी गाड़ियाँ आती हैं किसी का पंचर लगता है किसी के स्पेयर पार्ट पड़ता है किसी का कुछ पड़ता है तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं किसी की रोजी रोटी हम छीन नहीं सकते और ना हम छीनेंगे दूसरी बात यह है कि हमारे पास 50 लाख रुपया जो एडवांस आया हुआ था हम सोचे वो 50 लाख रुपये ये जो हम अपने जगह देखी है यहाँ पे हम एक फर्स्ट क्लास हॉल बनाएंगे हॉल बनाएंगे यहाँ 2 दुकानें आगे 2 दुकानें पीछे करके ऐसा करेंगे उसके ऊपर भी बनाएंगे अगर हमारे पास पैसे बचेंगे तो फिर वो हम जैसे सेल करते हैं ऑक्शन करते हैं वो हम करते हैं सर जो शॉपिंग कम्प्लेक्स मुखर्जी चौक पे आया था क्या उसका भी कुछ काम कुम लगाया जाएगा या और नए ढांचे जो हैं वो तैयार किए जाएंगे कौन सा आया था मुखर्जी जो मुखर्जी चौक पे बनना था उसका भी कोई काम शुरू होगा आगे जब वो वैसा ही रहेगा अभी वो काम शुरू है हो जाएगा 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा वो नीचे वाला वो शुरू हो जाएगा हमने 5 दुकानें दी हुई हैं उसकी पेमेंट आने वाली है हमने नोटिस उनको भेजा है जल्दी से जल्दी पैसे दो ताकि हम बाकी काम कर सकें शहर भर में कई जगह अतिक्रमण जो है वो किया जा रहा है चाहे आप कैप्टन चौक से शेदी चौक की तरफ चले जाएं या वार्डों के बीच में चले जाएं देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीछे हुआ है उसको मैंने देखना नहीं है जो आगे होगा उसको देखेंगे आगे हम करने नहीं देंगे पीछे वाले को हम रोकेंगे नहीं अब कोई मुझे ये कहेगा कि किसी गरीब आदमी ने लैंडर डाला हुआ है वो बिना अतिक्रमण है अगर अतिक्रमण है तो पीछे 4 साल किसी और ने काटे पीछे भी सीओ रहे पीछे भी सारे बंदे रहे अब उनको तो मैं छेड़ूंगा नहीं मैं उनके साथ बात करूंगा जो नया बनाने वाले हैं उनको कहेंगे कि आप अपना नक्शा पास करवाएं जहां आप अपनी जितनी लेन या ड्रेन या जो मतलब रोड है कितनी रोड है वो पीडब्ल्यू से हमें बता दें उसके पीछे अपना काम करें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगातार आप दौरे भी कर रहे हैं अलग अलग वार्डों में क्या देखते हैं इस समय मुख्य समस्या क्या है लोगों को मुख्य समस्या है सबसे बड़ी हमारी की जो सफाई है सफाई की बड़ी परेशानी है पीछे इन्होंने सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी अब चलो उन्होंने बंद कर दी है अब हमें सफाई कर्मचारियों की बड़ी ज़रूरत है और 20 बंदे हमने रखे थे फिर वो उनको हम उसमें डाल रहे हैं क्या नाम है उसका NGO जैम पोर्टल जो आजकल इन्होंने नया बनाया हुआ है कुछ उसमें डालेंगे अगर वो जैम पोर्टल में डलते हैं हम 20 के 50 रखेंगे और साथ में हम जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं हमारी 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारे पास 10 ड्राइवर नहीं है डायरेक्टर साहब से बात हुई थी उन्होंने कहा था 4 मैंने दे दिए बाकी भी दे दूँगा अब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जैम पोर्टल के तरीके से हम 10 ड्राइवर भी रख लेंगे और सारा सा काम लेन ड्रेन के लिए कुछ लेन ड्रेन के लिए देखो पीछे हमारा 4 करोड़ रुपया बेचारे ठेकेदारों का देने वाला है ठीक है और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं लेकिन जैसे हमें हमारा ये सोर्स बनते हैं पैसे आते हैं हम उन ठेकेदारों को पैसे देंगे क्योंकि उन्हीं ही ठेकेदारों ने फिर काम लिए हुए हैं जिन्होंने पहले काम किए हुए हैं ज़्यादा ठेकेदार वही हैं
कि जिनका कोई 50 लाख है, किसी का 40 लाख है, किसी का 30 लाख है, किसी का 14 लाख है, वो उनका देने वाला है। हम कोशिश करेंगे, उनको बोलेंगे कि जिनके पैसे देने वाले एक एक काम के हम पैसे देते हैं, बाकी काम आप शुरू करो और उससे हमारा सारा समस्या हल हो जाएगा। सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द मार्च अप्रैल में जो है वो म्यूनसिपल कमेटी और पंचायतों के इलेक्शन जम्मू कश्मीर सरकार करवाने वाली है विद इन 6 महीनों के अंदर मैं अंदर। कहता हूँ जो 10 दिन बाद कराने तो 2 दिन बाद करवा ले, हमें क्या फर्क पड़ता नहीं, क्या देखते हैं कि एमएलए के चुनाव नहीं हुए, विधानसभा के चुनाव नहीं, लेकिन म्यूनसिपैलिटी और पंचायतों की बहुत जल्दी है सरकार को। वो इसलिए जल्दी है, वो देखते हैं कि नीचे है कुछ, जमीन खिसक तो नहीं गई है। अगर जमीन नहीं खिसकी है तो फिर वो एमएलए क्या कराएंगे, अगर खिसकी गई होगी तो वो होगा ही नहीं कभी जिंदगी में। थैंक यू। आज अध्यक्ष ने दौरा किया है, क्या कुछ नया अपने वार्ड के लोगों को देने वाले हैं आप? अध्यक्ष जी ने आज दौरा किया है हमारे वार्डों का, और बड़ी जल्दी हमारी जो पेंडिंग डिमांडें थी वो पूरी होने जा रही है। एक जहाँ पे आप देख रहे हो ओल्ड बस स्टैंड के नज़दीक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है तकरीबन 1 करोड़ रुपए का। उसके साथ साथ लेन ड्रेन के भी काम है, कुछ काम लगे हुए हैं, कुछ काम जो पेंडिंग है वो उनके टेंडर लगे हुए हैं। बड़ी जल्दी काम रफ्तार के साथ